may begin your session within 5 seconds. Right? Okay. Okay, good, going by. Thank you. All right. Good afternoon, everyone. So we were discussing tax planning in the last class. We started with discussion on personal taxes and taxation structure in India. So let's continue that topic today. We discussed what are the steps in tax planning, what is the basic taxation structure in the Indian context for an individual. हमने slabs discuss किए थे, right? So now we talk about something called that is tax avoidance and tax evasion. We also I told you in the last class as well कि income tax act में there are certain deductions, there are certain benefits, there are certain regulations जिसकी वजह से गवर्नमेंट incentives देती है to make a person reduce their amount of tax to be paid. लेकिन उस टर्म को कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस. कोई इलीगल मीन्स के थ्रू अगर टैक्स अपना पेमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें या फिर जितना पे करना है उससे कम पे करें थ्रू illegal routes, that is called tax evasion. So first of all, let's look into the details of the meaning of both of these terminologies. Tax avoidance is defined as a practice of using all the legal means to pay the least amount of tax possible. The term legal means here is very important. Okay. Tax avoidance is a way of reducing taxes through the medium provided by the government. Government ने इनकम टैक्स एक्ट में रेगुलेशंस दिए हैं जिनके थ्रू आप इंडिविजुअल कंपनी organizations they can save the tax payable. So it is a practice of using all the legal means. Tax avoidance involves the legal exploitation of tax laws to one's own advantages. Every attempt by the legal means to prevent or reduce the tax liability, which would otherwise be incurred by taking advantage of some provisions or lack of provisions in the statutes of the country. क्या होता है country का? Let's talk about the Indian context. हमारे यहाँ पे income taxes देखता है income tax act. Okay? तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस में प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल का जो टोटल टैक्स पेबल है कम हो सकता है या कुछ चीज़ों पे टैक्स लगता ही नहीं है तो उनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज एवरी अटेम्प्ट बाय लीगल मीन्स टू प्रिवेंट दैट टैक्स लायबिलिटी और टू रिड्यूस दैट टैक्स लायबिलिटी, टोटल पेबल टैक्स या तो कम हो रहा है या कुछ चीज़ों पे टैक्स गवर्नमेंट लगाती ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एन एग्जेम्पशन. ओके, so that is like an advantage to an individual, to a company, to a business जिनके ऊपर भी वो टैक्स लग रहा है. So it is an advantage to that person and they are able to make use of it. या फिर जो दूसरी पार्ट है, taking advantage of those provisions or lack of provisions in the statutes of the country. lack of provisions यानी कि हो सकता है उस particular type of income के ऊपर या उस particular type of allowance या expense के ऊपर हमारे कंट्री में कोई टैक्स लगता ही नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हो सकता है इंडिया में टैक्स नहीं लगता, यूएस अपनी इकोनॉमी अपने इंडिविजुअल्स पर टैक्स लगाती है या फिर देयर आर थिंग्स ऑन विच द इंडियन गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन एन इंडिविजुअल बट द यूएस गवर्नमेंट डज नॉट. ओके, तो या तो हो सकता है किसी टैक्स लगता ही नहीं है तो दैट इज एन एडवांटेज अगर टैक्स नहीं लग रहा तो, है ना. तो उसे कहते हैं लूप होल का फायदा उठाना कि लॉ में तो इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं है इनकम टैक्स लॉ में तो इसीलिए टैक्स ही नहीं लगेगा तो उसका फायदा मिल रहा है तो एक पर्सन को या फिर जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में ही बेनिफिट मिल रहा है उस लॉ के अंदर ही, राइट. तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज. An arrangement entered into solely by or primarily for the purpose of obtaining a tax advantages. So tax avoidance, they're saying it is kind of an arrangement solely or primarily for the purpose of providing tax advantages. Tax avoidance एक mechanism है. It is not anything. It is not nothing illegal. It is nothing against the law. Okay. यहाँ पे एक individual को ही benefits मिल रहे हैं. एक individual को उसकी tax saving मिल रही है through different incentives, through different exemptions, reductions, अलग-अलग चीजें. We will discuss all of them one by one. Okay. Tax evasion क्या है? Tax evasion is a crime in which an individual or a business entity
intentionally underpays or hides their certain amount of income in order to save the more amount of taxes. Okay, so tax evaders, that they are indulging into something criminal, into something illegal activity, वो intentionally underpay कर रहे हैं, intentionally underpay और hide their certain amount of income. एक होता है ना, आपको अपनी गवर्नमेंट कहती है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे, यू डिस्क्लोज ऑल योर इनकम्स, कि आपकी सैलरी है तो सैलरी कितनी है, बिजनेस है तो बिजनेस इनकम कितना है, बैंक में कितना है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है. सो यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. टैक्स इवेडर क्या करता है, दे ट्राई टू हाइड और दे ट्राई टू अंडरस्टेट. अगर 1 लाख है तो 80,000 दिखा रहे हैं ताकि टैक्स कम दिया जाए या टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए, for whatsoever reason. Okay, so what they are trying to do is they are trying to do that to save more amount of taxes. This method is certainly illegal in all the countries. Tax evasion is basically non-payment of tax by means of not reporting all the taxable income or by taking not allowed deductions. क्या हो रहा है कि किसी पर्सन की, हमने स्लैब्स पढ़े थे लास्ट क्लास में कि इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं. एक इंडिविजुअल लेस देन 60 years of age is not supposed to pay any tax on his income up to rupees 2,50,000. 2,50,000 के ऊपर डिफरेंट रेट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो मान लो किसी पर्सन की एनुअल इनकम है 2,70,000. अब देर आर मोर बेनिफिट्स ऑल्सो. हैविंग सेट असाइड ऑल ऑफ देम, आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने बोला 250,000 एग्जेम्प्ट रहेगा. सो व्हाट दे विल डू इज, दे रिडक्शन क्लेम करना होता है या टैक्स अवॉइडेंस होता, तो वो होता कि 2,70,000 की जगह पे उन्हें सिर्फ 20,000 पे टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉ में लिखा है कि 250 तक एग्जेम्प्ट है. ओके, लेकिन what if that person becomes a tax evader, वो अगर वो 20,000 वो दिखाए ना, वो अपनी इनकम शो ही 250,000 करेंगे वो अपनी इन ITR में, या फिर what they will do is डिडक्शंस जो क्लेम करनी होती हैं, डिडक्शंस मैं आपको अभी बताऊंगी कौन कौन सी हो सकती हैं. But deductions, to claim every income tax deduction, there are a lot of terms and conditions which need to be fulfilled. कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे, या आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है, या आपकी ऐसी पेमेंट है. In that case, the government gives you deductions. But in order to claim all of them, all the terms and conditions need to be fulfilled. So एक होता है by not fulfilling all of them, और या फिर वो डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. So you are trying to use the illegal means. You're trying to manipulate numbers. You're trying to manipulate your ITR filing disclosures to avoid paying your taxes. इसे कहते हैं tax evasion. Activities क्या क्या हो सकती हैं? Under reporting the income. आप अपने total income कम दिखा रहे हो ताकि आपको कम tax देना पड़े. या फिर inflating the deductions or expenses. Business income में क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंसेस डिडक्ट करके दिखाते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है. अगर वो अपना कोई कंपनी अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा शो कर देगी तो ताकि उनका क्या हो जाएगा, फिर टोटल नेट इनकम कम हो जाएगी तो कम टैक्स देना पड़ेगा. या फिर इन्फ्लेटिंग द डिडक्शंस, या एक्सपेंसेस के अलावा भी मान लो डिप्रिसिएशन जितनी चार्ज होनी तो उससे ज़्यादा चार्ज करके दिखा दी. या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, एक बिजनेस है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, वो जितनी सैलरी देते हैं वो उससे ज़्यादा शो कर रहे हैं ITR में. क्यों शो कर रहे हैं? ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े, जो नेट इनकम जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा वो कम हो जाए. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. द थर्ड इज हाइडिंग मनी. ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है? बिकॉज ब्लैक मनी इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैंक. बैंक के अंदर जो पैसा है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू लिंक होके एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सब कुछ वो शो हो जाता है. लेकिन जो पैसा आपका बैंक में नहीं है, जो आपके पास कैश होगा, if a person tries to hide that, because the money you have linked to your PAN card is your white money. The person who has money other than that, जिसके ऊपर कोई taxes नहीं लगे हैं, जिसका source unknown है, so that is your what? Black money. तो they are trying to hide that money to avoid paying taxes on it. या फिर hiding interest in offshore accounts. आजकल आपने न्यूज़पेपर्स if you read, आपने पैनामा पेपर्स के बारे में आ रहा है, उसके पहले पैंडोरा पेपर्स आते थे. सो व्हाट इज दैट बेसिकली? या फिर स्विस अकाउंट्स में किसका कितने एसेट्स हैं, किसके कितनी मनी इज डिपॉजिटेड इन स्विस अकाउंट्स, स्विट्जरलैंड के बैंक्स में. सो बिकॉज व्हाई डिड दे डू दैट? कि वहाँ पे टैक्सेस लगते ही नहीं है,
या फिर इतने क्वेश्चंस नहीं उठते हैं आपके इनकम्स पे, जो भी रीजन है, what they are doing is they are trying to hide their balance in those offshore accounts to avoid paying taxes in their own country. That is not legal. All these things are means of evasion of taxes on the income. ठीक है, तो अब tax avoidance और tax evasion में difference क्या है? Tax evasion and tax avoidance are two techniques which are used and applied by many people for reducing their tax liability. दोनों का purpose तो same है कि क्या कर रहा है person, tax liability कम करने की कोशिश कर रहा है, right? But tax avoidance is a completely legal procedure while tax evasion is considered to be a crime in the whole world. कहीं पे भी tax evasion कोई it's not a rightful activity. Okay, the core difference which can be ascertained from these concepts is that tax evasion is a criminal offense and whereas tax avoidance is perfectly legal. That is why your income tax department या government भी या bank officers when they do their अपने checks या inspections या raids होती हैं, तब पता चलता है कि taxes नहीं pay किए हैं किसी ने, right? So that is why tax evasion is a criminal offense while tax avoidance is a perfectly legal activity. So tax avoidance क्या है? First point, payment of taxes is avoided though by complying with the provisions of the law. That is very important. Whereas payment of taxes avoided through illegal means or fraud. You are not using only the regulations in the income tax law. You're trying to underreport your income. You're trying to hide your money. You're doing anything and number of illegal activities to avoid reducing or uh, totally eliminating your tax liability. The second point is it is undertaken by taking advantage of loopholes in the law. जैसे मैंने आपको बताया ना कि लॉ में या तो आपको मिला है कि बेनिफिट है आपके लिए या फिर लॉ में उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स लगने के बारे में बात ही नहीं हुई है, तो दोनों केसेस में आपने तो बोल इट इज नथिंग इलीगल यू आर डूइंग, यू आर सिंपली फॉलोइंग द लॉ. अगर लॉ में लिखा है कि इस पे इतना टैक्स नहीं लगना है, नहीं लगेगा, तो आपका तो योर मनी सेव दैट वे. While in the case of tax evasion, it is undertaken by employing unfair means. जो हमने सारी activities अभी examples discuss किए. The third point is that it is not performed through malified intention but by complying through the provision of the law. Malified intention यानी कि the intention is not right. The intention is to not abide by the law. The intention is fraudulent. It is illegal. Okay, and so that is they are saying कि tax avoidance के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. Intention is purely legal. It is purely to reduce the tax liability by complying with the provisions of the law. Whereas tax evasion के केस में क्या होता है? It is performed through unlawful ways of paying taxes and defaulters may get punishment. If you are caught by the income tax department, they will make your life hell. They will make government taxes इम्पोज करेगी, पेनल्टीज इम्पोज करेगी, पनिशमेंट भी हो सकती है, imprisonment भी हो सकती है. देयर कैन बी वेरी हार्श पेनल्टीज. ओके, सो दैट इज द केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन. नाउ वील टॉक अबाउट इनकम टैक्स में डिडक्शंस क्या होती हैं, एग्जेम्पशंस क्या होती हैं. अभी हमने लास्ट टाइम भी बात की, अभी भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिडक्शंस देती है. क्यों देती है? टू हेल्प एन इंडिविजुअल lower their taxable income and ultimately reduce their tax liability in a given financial year. Put simply, they are investments made during a financial year that are offset against the gross annual income when filing the income tax returns. Government आपको incentive देती है कि आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करो और जितने अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने अमाउंट का आपका टैक्स कम कर देगी गवर्नमेंट. ओके, it is not like government is straight up saying that fine आपका इतना ये amount of income है, इस पर आपको इतनी amount of deduction मिल जाएगी. No, there is a condition attached to it that actually क्या है, you are paying something somewhere else or you are investing something somewhere else and the government is allowing you to claim a tax benefit on it. Why the government is doing that? क्योंकि इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, द इकोनॉमी विल प्रॉस्पर, इकोनॉमी को भी फायदा होगा एंड द सिटीजन, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसको भी फायदा होगा.
Instead of spending his money somewhere else, he's using his saved money to invest it somewhere. उसको dual benefit हो रहा है, उसको taxes भी save होंगे उसके उस person के, and साथ साथ he's investing his money somewhere else for his near future. ठीक है, तो जितना वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उन डिफरेंट स्कीम्स में, तो उन एप्लीकेबल स्कीम्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इनकम टैक्स में से उतना ही अमाउंट माइनस कर देती है. The provision of tax deductions is put in place to inculcate a habit of saving in people to help them build a secure financial future. The most popular examples of income tax act deductions include investments made under Section 80 of the Income Tax Act 1961. इन ELSS फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के फंड्स होते हैं ये, जहाँ पे आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जितना भी चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, और जितना पैसा आप अपना इन्वेस्ट करोगे उतना ही इनकम टैक्स में आपका ITR में माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी में से. प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन टू एनकरेज पीपल टू बाय अ हाउस. तो अगर किसी का होम लोन होता है, फर्स्ट होम के लोन पे प्रिंसिपल रीपेमेंट पे भी डिडक्शन मिल जाती है, उसके होम लोन के इंटरेस्ट पे भी अलाउंस एग्जेम्पशन मिल जाती है. देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज अ गवर्नमेंट फंड जहाँ पे अ पर्सन कैन इन्वेस्ट देयर मनी, उनको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. तो उस इन्वेस्ट करने के साथ साथ उनको देखो इंटरेस्ट मिल रहा है, उनको इनकम टैक्स की भी सेविंग मिल रही है, और उनका एक फ्यूचर के लिए आगे के लिए पैसा रेडी हो रहा है. नेशनल पेंशन स्कीम जो NPS स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें वट एवर अ पर्सन विल इन्वेस्ट, it is good for their good also, and the amount of investment is also deductible from their income tax. So these are some of the examples. We'll discuss rest of the whole section 80 in the next slides. Okay, now these are income tax deductions. दूसरा टर्म होता है exemptions. Exemptions and deductions are two different terms. अब बताओ exemptions क्या होता है. Income tax exemptions and allowances बोल सकते हैं are components of your gross income that, as the name suggests, are exempted from being calculated as part of your total taxable income. They allow individuals to preserve a significant amount of their income. The Income Tax Act mandates these exemptions or allowances so that people can save more. Now, what is the difference? Exemptions के केस में बोलते हैं आपकी जो टोटल इनकम है वो तो उसमें से अगर कुछ कम होता है वो डिडक्शन होती है. ओके, एंड एग्जेम्पशंस के केस में है इनकम टैक्स रिटर्न में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट. अगर आपने अपने किसी वेबसाइट पे आप जाके देखना, या फिर आपने अपने इनकम टैक्स लॉ में पढ़ा होगा, या फिर आप अपने पेरेंट्स का ITR साथ में बैठ के देखना, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं. सैलरी का, हाउस रेंट का, बैंक के लोन्स हैं कोई, या बैंक के डिपॉजिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर. एग्जेम्पशंस क्या होती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ कुछ इनकम को पर्टिकुलरली एग्जेम्प्ट कर देती है, यानी कि इतने पार्ट ऑफ इनकम के ऊपर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के 5 सोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं, उसमें से एक पे कोई टैक्स नहीं लगता. अगर वो गवर्नमेंट कह रही है कि इस चीज पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ उतने अमाउंट पे, उसे कहते हैं एग्जेम्पशन, दैट दिस पर्टिकुलर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. while a deduction is जो अब 5 कंपोनेंट्स को टोटल करके आपकी टोटल इनकम आ गई, उसे कहते हैं ग्रॉस एनुअल इनकम, जिसके ऊपर एक पर्सन का इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है. वो टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आप माइनस कर रहे हो अपनी, सॉरी, वो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आप माइनस कर रहे हो जो फिगर, वो डिडक्शंस जो सेक्शन 80C 80D जो अभी हम करेंगे. अब एग्जांपल देखो एग्जेम्पशंस के क्या हो सकते हैं. इट कैन बी हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, children's education allowance, and exemptions under section 24 among others. section 24 की exemption is related to home loans. okay, क्या बोल रहे हैं कि HRA पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लीव ट्रैवल अलाउंस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, होम लोन के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि और चिल्ड्रंस एजुकेशन पे जो खर्चा कर रहे हैं या उसके लिए जो अलाउंस अगर आपको मिलता है अपनी सैलरी में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टिंग सर्टेन सेक्शंस. Okay, so what is the difference between a deduction and an exemption? So under the case of deductions, investments in certain instruments as prescribed under the Income Tax Act are offset from an individual's total tax liability are known as income tax deductions. Like I told you कि आप investment करते हैं कहीं पे, उतने amount की आपको अपनी tax आपका कम हो जाता है. कौन सा tax कम हो जाता है? एक बार total income calculate होने के बाद जो total tax निकला है वो कम हो रहा है. What is happening in the case of exemptions on the other side is
A particular income that is exempt from tax and thus not included in the total tax liability is called an income tax exemption. आपकी टोटल जो इनकम कैलकुलेट हो रही है ना, टोटल टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, उसमें से ही उसको हटा देते हैं कि इस पर्टिकुलर इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा. That is an exemption. I hope you are able to understand the difference. The second point is that income tax deductions are mostly covered under the scope of Section 80 of the Income Tax Act. Section 80 में अलग-अलग clauses हैं, उसमें अलग-अलग investment instruments के deductions हैं अलग-अलग amounts के. Whereas in case of exemptions, they are covered under Section 10, 11, 12, 13 and 24. सबसे ज़्यादा जो deduction exemptions हैं Section 10 के अलग-अलग clauses में, which are the most commonly used, which are the most popular. ठीक है? Individuals have to meet certain predetermined criteria to be eligible for income tax deductions. हर type of deduction claim करने की terms and conditions होती हैं. Like I told you कि investment करना है, कितने amount तक का investment कर सकते हैं, maximum कितना claim कर सकते हैं, किस particular type की investment की बात हो रही है. Everything is defined. कि अगर ऐसी investment करेंगे तभी government आपको deduction देगी. Exemption के इसमें all taxpayers in the country qualify for a income tax exemption. कि अगर country की law में लिखा है कि children's education allowance के ऊपर कोई tax नहीं लगेगा, so it does not matter who the person is, उनको children's education allowance अगर उन्हें मिलता है तो government उनसे उस पर tax नहीं लेगी. That is one example. Now some examples of income tax deductions include ELSS, equity linked saving scheme, fixed tax savers fixed deposits, बैंक के fixed deposits में especially tax saver fixed deposit होता है, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड मेनी मोर. एग्जेम्पशन के केस में एग्जांपल्स हैं HRA, LTA लीव ट्रैवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी फंड्स अप टू ₹1 लाख. कैपिटल गेन के ऊपर स्टॉक मार्केट में अ पर्सन इज बाइंग एंड सेलिंग इक्विटी शेयर्स, तो उसके ऊपर उनको आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आई होप इनकम टैक्स लॉ में या फिर आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, तो उसमें होता है. तो बोल रहे हैं उसमें अप टू ₹1 लाख पे भी गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी. 1 लाख से ऊपर अगर कैपिटल गेन्स की इनकम जाती है तब उस पर टैक्सेस लगेंगे. अप टू 1 लाख नो टैक्सेस एप्लीकेबल. सो दैट इज एन एग्जेम्पशन, दैट इज नॉट अ डिडक्शन. डिडक्शन क्या है, माइनस हो रही है. एग्जेम्पशन क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट पहले जीरो कर दिया. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now, exemptions here we'll study in detail. One sure way to reduce your tax liability is to be aware of the exemptions under the Income Tax Act. जैसे मैंने आपको बताया Section 10 में सबसे ज़्यादा or most widely used or major tax exemptions हैं. So that is related to the HRA. There is a standard deduction that is about EPF, pension and all of those things. ठीक है. HRA के केस में क्या होता है? Exemption will be the minimum of total HRA received or 50% of the income, basic plus DA for individuals living in metropolitan cities or 40% for those living in non-metro cities. पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं. उन्होंने बोला हाउसिंग रेंट अलाउंस जो मिलता है एक इंडिविजुअल को, उस पर एक एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट. क्या है एग्जेम्पशन? मिनिमम ऑफ यानी कि लोअर ऑफ, दोनों में से जो कम होगा. टोटल HRA जितना उसको उसके एम्प्लॉयर दे रहे हैं या तो वो, या फिर उनकी जो बेसिक इनकम प्लस DA है उसका 50%, अगर वो पर्सन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है. आई एम टॉकिंग, ये सारे जो अब मैं अलाउंसेस की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, दे आर ऑल ओनली इन द इंडियन कंटेक्स्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है. ओके. तो एक पर्सन की बेसिक सैलरी प्लस उनका DA का 50% इफ ही इज रिसाइडिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, and 40% for other non-metropolitan cities. In metro cities के अलावा जो cities हैं वहाँ पे 40% applicable होगा. The third is rent paid less than 10% of the basic salary plus DA. यानी कि basic salary plus DA का जो 10% है उसको अपने जो आप और जो उतना वो person rent pay कर रहा है उसमें से माइनस कर दो. ये 3 टाइप की फिगर्स देखेंगे, तीनों में जो सबसे लोएस्ट होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है. दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड इन केस ऑफ हाउसिंग रेंट अलाउंस. देखो, एक है एक इंडिविजुअल को उसके एम्प्लॉयर ने जितना HRA दिया उसकी सैलरी में, एक है उसकी सैलरी बेसिक सैलरी प्लस DA का 50% या 40%, एक है जितना वो रेंट पे करता है एक्चुअली माइनस उसकी सैलरी और DA का 10%.
इन तीनों में जो लोएस्ट होगा गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी उतने अमाउंट के ऊपर। ऑब्वियसली उससे ज्यादा अगर अमाउंट बढ़ जाता है तब टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो एग्जेम्पशन भी क्या है, एक लिमिट तक है। ओके, यू कैन सी दैट। The second is a standard deduction which is given to all salaried people. All salaried individuals claim a flat deduction of rupees 50,000. This was increased from 40,000 per year to 50,000 per year during the annual union budget 2019. कि एक सैलरी की जो टोटल सैलरी इनकम है एक पर्सन की, उसमें से फ्लैट एक गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 50,000 हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे उनकी सैलरी के ऊपर। जितनी भी सैलरी बनती है 50,000 तो ऐसे ही माइनस कर दो अपनी टोटल सैलरी में से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज अ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, tax exemption of allowance of maximum rupees 100 per month for up to 2 children only can be availed by an employee. यानी कि अब देखो एजुकेशन, नाउ गवर्नमेंट जो सारी एग्जेम्पशंस दे रही है, देखो सबके ऊपर कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के केस में कैप क्या है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एक एम्प्लॉई उतना चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज हॉस्टल सब्सिडी। Subsidy on the hostel expenditure can also be exempted up to rupees 300 per month for a maximum of 2 children. So rupees 300 per month per child for up to 2 children hostel subsidy है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। Interest paid on housing loan. One can avail income tax exemption of rupees 2 lakh on the interest paid on home loans, provided the house is currently occupied by the owner or is set to finish construction within 3 years. When a person is buying a house, they are saying they are giving a tax benefit to that person. कि मान लो उन्होंने अब होम लोन लिया, ठीक है, घर खरीदने के लिए, तो हर महीना वो जो उसकी EMI पे करेंगे, तो EMI has 2 components, a principal and an interest. So annually 2 लाख रुपए उस टोटल इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में से, प्रोवाइडेड, उसकी कंडीशन क्या है कि उस घर में आप खुद रह रहे हैं, जो आपने घर खरीदा है, या फिर अगर उस घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है आपने पहले बुक कर दिया है, राइट, ऐसे भी करते हैं। सो इट शुड बी completed within 3 years, only then the government will allow you to claim this exemption for interest on home loan. समझ आ गया? And the last one is a leave travel allowance. Income Tax Act also allows for a tax exemption to salaried employees on travel expenses. However, LTA does not cover all the expenses such as food, shopping, and entertainment. It can be used twice in a period of 4 years and only covers domestic travel by railway, air travel or public transport. तो देखो लीव ट्रैवल पे भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है, तो उस पर कंडीशंस लगाई हैं। क्या लगाया है, सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई खाना, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट पे नहीं, फिक्स्ड अमाउंट होगा एक पर्सन की सैलरी के अकॉर्डिंग, जितना उनको मिलता है उनके एम्प्लॉयर से। कितना क्लेम कर सकते हैं, 4 साल में 2 बार। ओके, 4 साल में कभी भी 2 बार आप पर्सनली क्लेम कर सकते हैं, एंड ओनली फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, नॉट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। वो डोमेस्टिक ट्रैवल कोई बाय एयर करे या बाय रेलवे करे या बाय एनी अदर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इस केस में लीव ट्रैवल अलाउंस के ऊपर टैक्स इज एग्जेम्प्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। ये होती हैं, they are not all the exemptions there, these are the most widely used and most popular exemptions. अब मैं आपसे डिडक्शंस की बात करने वाली हूँ। जो सेक्शन 80 हमने बोला कि सेक्शन 80 के अंदर डिफरेंट डिडक्शंस हैं, टोटल एग्जेम्पशंस तो आपने देख लिया ना, देखो कि छोटी छोटी कंपोनेंट्स के ऊपर बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं लगेगा या इतनी फ्लैट वो मिल जाएगी, हाउसिंग रेंट पे इतना लिमिट तक, एजुकेशन पे, हॉस्टल के एक्सपेंस पे या होम लोन पे लिमिट तक जीरो हो जाएगा टैक्स। डिडक्शन क्या हो रही है, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। उसमें से क्या कह रहे हैं, अंडर सेक्शन 80C, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वन बाय वन, मैक्सिमम ऑफ अप टू 1,50,000, 1.5 लाख, एग्रीगेट ऑफ सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD। अब देखो 3 है ये सेक्शंस, 80C, 80CCC और 80CCD, तीनों की टोटल डिडक्शन जो है 1,50,000 पे मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है।
कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल्स क्लेम कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्स्ट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो पहले सेक्शन 80C बता देती हूँ मैं आपको। सेक्शन 80C क्या है? इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मैक्सिमम उस पर कैप लगी हुई है? 1,50,000 की। So what they do is the government has said you can make an investment in PPF, in ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या फिर यूलिप्स, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। सो इस केस में क्या हो रहा है? देखो, पीपीएफ हो सकता है, LIC के फंड्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो इंक्लूड हो सकता है। ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट की है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पेड टुवर्ड्स होम लोन। मैंने आपको बताया ना कि होम लोन के 2 EMI में 2 कंपोनेंट होंगे, प्रिंसिपल पे होता है, होम इंटरेस्ट पे होगा। देखो, इंटरेस्ट में क्या मिल रही है? एग्जेम्पशन। प्रिंसिपल पे क्या मिल रही है? डिडक्शन। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सारी देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल रही है। या फिर यूलिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 इयर्स की कोई टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। ऑल ऑफ दीज आर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इन सब में इन्वेस्ट करोगे, टोटल आप कितना भी इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम कैप लगा हुआ है 1,50,000 का। मान लो आपने 50,000 पीपीएफ में डाल दिया, 50,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, 20,000 की पॉलिसी है, 20,000 की एफडी है, ऐसे ऐसे करके आप मान लो 2 लाख बन गई आपकी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रहेगी, लेकिन उसका जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा, वो आपको 1,50,000 मिलेगा। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट लगाई है कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स पे वो होनी चाहिए ये वाली इन्वेस्टमेंट, इनके अलावा नहीं। करोगे ये वाली इन्वेस्टमेंट्स उस पर्टिकुलर साल के लिए, तो 1,50,000 गवर्नमेंट आपका टैक्स माफ कर देगी। दैट इज अबाउट सेक्शन 80C। सेकंड मैंने कौन सा बताया? सेक्शन 80CCC। 80CCC क्या है? It provides a tax reduction for amount paid by taxpayers who have subscribed to an annuity plan offered by an approved insurance company. इंश्योरेंस की भी डिफरेंट पॉलिसीज की स्कीम्स होती है। एनुइटी प्लान क्या है? मतलब एनुअली हर साल आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, या हर साल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। The payment has to be in a fund mentioned in section 1023 AAB। तो देखो, सेक्शन 10 जो इनकम टैक्स लॉ का है, उसके अंडर कोई एग्जेम्पशन गिवन है, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड्स में वहाँ पे एक लिस्ट होगी या एक मेंशन होगा टर्म्स एंड कंडीशंस, उन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इंश्योरेंस में, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इट इज अवेलेबल टू बोथ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स। एडिशनली एनी बोनस और इंटरेस्ट through the annuity plan is not eligible for tax deduction. Proceeds from the policy in the form of pension from the annuity or the surrender of annuity are taxed. तो देखो, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो आप एन्युटी में, जो पीरियोडिकली एनुअली है, हाफ एंड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या मंथली है, उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन उस पॉलिसी से के थ्रू आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई उसके ऊपर बोनस दे दिया इंश्योरेंस स्कीम ने, या फिर यू आर रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न, या फिर उसके टोटल एक्सपायरेशन से पहले उसको सरेंडर कर दिया पॉलिसी को, तो आपको कंपनी पैसा दे देती है, तब उस केस में सब चीज़ों पर टैक्सेस लगेंगे और उसकी फिर डिडक्शन भी नहीं क्लेम होगी। सो दिस इज सेक्शन 80CCC। नाउ तीसरा क्या था? सेक्शन CCD, 80CCD। 80CCD आपका प्रोविडेंट फंड। हमने लेबर लॉज में आपने पढ़ा कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी भी टैक्स बेनिफिट मिलती है। क्या बेनिफिट मिला है? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज ने अपनी सैलरी से जो खुद अपने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, maximum of up to 10% of the salary for employees or 20% of the gross total income for self-employed individuals. Now you will say कि in labor EPF Act ने तो बोला है इंडिविजुअल को अब EPF में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होता है ना, लेकिन जितना भी अमाउंट बन रहा है वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा 10% का। 10% जितना आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है वो 12% किया है, इट्स ओके, लेकिन गवर्नमेंट आपको आपकी सैलरी का 10% का रिडक्शन अलाउ कर रही है। या फिर आपकी इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, देन द गवर्नमेंट विल गिव यू 20%।
डिडक्शन. दिस लिमिट इज कैप्ड एट 1.5 लाख. तो देखो 80C की ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लस आपकी इंश्योरेंस की जो एन्युटी है, प्लस आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है, तीनों में मिला के मैक्सिमम 1,50,000 आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से कम हो सकता है. ये फिगर्स उससे ज्यादा भी होंगी तब भी 1,50,000 या उससे कम है फिर तो उतना ही रहेगा जितना आप इन्वेस्ट करोगे. उससे ज्यादा होगा लेकिन उस पर फिर कैप लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी 1,50,000 की. The second point is self-contribution under Section 80 CCD. Individuals can claim an additional deduction of rupees 50,000, both salaried and self-employed individuals, for contribution towards NPS. पेंशन स्कीम जो हमने नेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ये 1,50,000 के अलावा भी 50,000 और बेनिफिट मिलेगा. तो इससे क्या हो रहा है, विद दिस द मैक्सिमम डिडक्शन इंक्रीजेस टू ₹2 लाख, लेकिन वो पूरा 50,000 एनपीएस तक ही मिल सकता है और किसी में ऐड होकर 2 लाख नहीं बनेगा वो. The third point is employer's contribution. Additional deduction up to rupees 10% of an employee's salary for employer's contribution towards NPS. अगर NPS में आपके सैलरी में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है आपके सैलरी कॉन्ट्रैक्ट, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका भी आपको 10% का डिडक्शन मिलेगा. ओके, दीज आर द सेक्शन 80C, CCC एंड CCD जिसकी टोटल 1,50,000 2 लाख की डिडक्शन आपको गवर्नमेंट दे रही है. ओके, next section 80D, deduction for health insurance premium and medical expenses for senior citizens. And individuals below 60 years can also claim up to rupees 25,000, whereas senior citizens can claim up to rupees 50,000. आप एक पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता है या उनके मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो उसका खर्चे का भी टैक्स में से डिडक्शन मिल रहा है. कितना मिल रहा है? इफ अ पर्सन इज बिलो द एज ऑफ 60 ईयर देन he or she can claim up to rupees 25,000. If a person is a senior citizen, he or she can claim up to rupees 50,000. दो चीजें हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसकी पेमेंट या फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, सबके प्रूफ ऑब्वियसली शो किए जाएंगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. The next is section 80DD. This is rupees 75,000 for those with 40 to 80% ऑफ डिसेबिलिटी. तो अब देखो यहाँ पे ना इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने डिफाइन किया होगा कितनी टाइप कौन कौन से टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज अलाउड हैं एग्जेम्पशन क्लेम डिडक्शन क्लेम करने के लिए. एंड 40 to 80% कितनी परमानेंट डिसेबिलिटी है तो व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज इट 40% डिसेबल्ड, 60%, 70%, 80%. 40 to 80% कैटेगरी में तो 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है एंड 1.25 लाख फॉर सिवियर डिसेबिलिटी. अगर किसी की सिवियर डिसेबिलिटी उन्होंने डिफाइन किया 80% और मोर, ये आपका डॉक्टर आपको सर्टिफाई करके देंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी इज. वो डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे एंड 1,25,000 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो. कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल्स एंड HUFs विद अ हैंडीकैप डिपेंडेंट. या तो टैक्स पेयर खुद हैंडीकैप हो सकता है, उनकी खुद की डिसेबिलिटी है, या फिर उनका डिपेंडेंट की लाइक इफ देयर पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रन और स्पाउस. डिपेंडेंट्स में जो हैं इफ दे आर आल्सो हैंडीकैप तो उस पर्सन को अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी ये डिडक्शन क्लेम मिलेगा गवर्नमेंट से. द नेक्स्ट इज सेक्शन 80DDB. Deduction can be claimed for medical treatment of a dependent who is suffering from a specific illness. अब specific illness भी defined है income tax में, ठीक है? The amount allowed as deduction is as follows. Amount of rupees 40,000 or the amount paid, whichever is less, for individual under 60 years of age. या तो maximum 40,000 मिलेगा. And a maximum of 1 lakh or amount paid, whichever is less, for senior citizens and super senior citizens. Senior citizens होते हैं 60 plus, super seniors होते हैं 80 years and above. Okay, तो यहाँ पे भी a person who is suffering from a specific illness और उनकी medical treatment का जो खर्चा है उसकी बात हो रही है. Okay, that is section 80DDB. The next is section 80E. Reduction is provided only on the interest part of the education loan. एक पर्सन एजुकेशन लोन भी लेता है हायर स्टडीज के लिए तो उसके लिए भी उनको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल रही है. गवर्नमेंट इज गिविंग यू अ टैक्स बेनिफिट बिकॉज यू आर स्टडीइंग और यू हैव स्टडीड अपना. अब आपने जॉब स्टार्ट कर दिया तो आपको सैलरी मिल रही है तो आप जो अपना साथ साथ आपको होम लोन रीपे करना है
गवर्नमेंट उसका टैक्स बेनिफिट दे रही है. It is available only for 8 years, starting from the year your loan repayment begins or until the interest is fully repaid, whichever is earlier. देखो लोन की जो रीपेमेंट होती है, मान लो एक पर्सन 2 साल की मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया है, बट वो रीपे तो कभी कर पाएंगे जब उनकी जॉब लग जाएगी, तो तब तक इंटरेस्ट चार्ज होगा. इट इज नॉट लाइक इट विल नॉट बी चार्ज. लेकिन जो लोन की रीपेमेंट है, मान लो वो तब स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर बैंक नहीं माना तब तो 2 साल से पहले भी करनी पड़ेगी स्टार्ट, एज पर योर लोन अग्रीमेंट, और अंटिल द इंटरेस्ट इज फुली रीपेड, या फिर आपने इंटरेस्ट अपना पूरा पे कर दिया, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वहां से लेके 8 साल तक आप ये एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगी डिडक्शन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे. दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स. ओके, द नेक्स्ट इज सेक्शन 80EE. 80EE के केस में मिल रही है हाउसिंग प्रॉपर्टी पे डिडक्शन. मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स. It is provided on the interest part of the residential house property availed from a financial institution. A maximum 50,000 can be claimed. आपका होम लोन का जो EMI है उसके इंटरेस्ट के ऊपर मैक्सिमम 50,000. The next is section 80EEA. This section allows a deduction of up to 1.5 lakh for interest paid by first time home buyers for a loan sanctioned by a financial institution. देखो गवर्नमेंट कितने सारे बेनिफिट्स दे रही है just to encourage people to buy their own house property. कि फर्स्ट टाइम होम बायर है तो उसको 1.5 लाख की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी. और देखो ऊपर सेक्शन 80EE में 50,000 तो मिल ही रही है, उसमें फर्स्ट टाइम नहीं लिखा, मतलब किसी का दूसरी हाउस प्रॉपर्टी भी अगर खरीद रहे हो तब उनको 50,000 मिलेगी. पहली बार जो घर खरीद रहा है, उसका जिसका पहला घर खरीद रहा है, वो उनको 1.5 लाख की मिलेगी डिडक्शन. ठीक है. Then the next is section 80G. Section 80G pertains to all the donations made towards charity. ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म्स को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को भी मिलती है, कि इसमें जितना भी चैरिटी में वो डोनेट कर रहे हैं उस अमाउंट का 100% या 50% उसमें डिफाइंड है, कि कौन से केसेस में 100% और कौन से केसेस में 50% आपको इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी. ठीक है. सेक्शन 80GG. Indian companies or enterprises can claim tax reduction for contribution made to a political party or an electoral trust registered in India. They can claim up to 100% deduction against the amount donated. ये donations charity के लिए section 80G में बोला, जितना amount आप donate करोगे उसका पूरा, मान लो किसी person ने 50,000 donate किया किसी charity में, तो वो टाइप ऑफ चैरिटी पे के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट या तो पूरा 50,000 का टैक्स डिडक्ट कर देगी आपका, या 25,000 कर देगी. सेक्शन 80GG में चैरिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, अ पर्सन इज गिविंग सम डोनेशन, तो उनको उसके अगेंस्ट 100% टैक्स माफ हो जाएगा. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑल द कंपनीज इन इंडिया. ओके. Now, the next section 80GGC. GGC किसके लिए है? Contributions made to political parties. The tax reduction claim can range from 50% to 100% of the amount contributed. Political party में individuals भी contribute कर सकते हैं, and जितना amount वो contribute करेंगे, depending on the terms and conditions, उसका amount का 50% या फिर 100% उनका tax कम हो जाएगा. ये individuals के लिए हो गया. ऊपर वाला GGB जो है वो companies के लिए हो गया, C हो गया इंडिविजुअल्स के लिए. ओके. नाउ वी आर ऑन टू सेक्शन 80GG. सेक्शन 80GG किसके लिए है? Those paying rent for residency can claim a tax reduction of ₹5,000 per month or 25% of that total income, or rent minus 10% of adjusted gross income, whichever is less. किसके लिए? देखो साइड में देखो, इंडिविजुअल्स नॉट रिसीविंग द HRA, ये सिर्फ इनको मिलेगा. क्या मिलेगा? एक पर्सन रेंट पे रहता है, ठीक है, कहीं पे भी, तो या तो उनको 5,000 पर मंथ की डिडक्शन मिल जाएगी टैक्स में से, या फिर उनकी जो टोटल सैलरी है उसका 25%, या फिर उनका जो टोटल रेंट है माइनस 10% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम. तो डिपेंडिंग ऑन द terms and conditions, either of these three can be claimed as a deduction by that individual taxpayer.
ये तभी होगा जब उस पर्सन को एचआरए नहीं मिलता है. इंडिविजुअल इज नॉट रिसीविंग एन एचआरए इन दिस केस. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 80 RRB. ये क्या है? रॉयल्टीज की जो इनकम होती है, इनकम ऑफ up to rupees 3 lakh received from royalty is eligible for tax reduction under this section only for Indian residents. रॉयल्टी फ्रॉम किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से आ रही है आपकी, कहीं से भी, या फिर कोई और फैमिली को पुरानी किसी चीज़ के लिए रॉयल्टी मिलती है, कोई उनकी क्रिएशन के लिए होती है ना रॉयल्टी, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में. इट कैन बी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, IPR बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, वो हैं, उनके केस में कोई पैटेंट आता है, कोई रॉयल्टीज आ रही हैं, तो इनकम फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स up to rupees 3 lakh are exempt, are eligible for tax reduction. They are not exempt, they are given tax reduction. Section 80 TTA. TTA के केस में आपकी जो बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, बैंक में एक पर्सन का होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट दोनों, उसके अलावा एक FDs RDs ये सब करते हैं. फिक्स डिपॉजिट के केस में तो गवर्नमेंट ने डिडक्शन दी है सेक्शन 80C में कि 5 ईयर की अगर टैक्स सेवर FD है तो उसमें बेनिफिट की डिडक्शन मिल सकती है. उसके अलावा भी, FD के अलावा भी आपका सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा होता है उस पर जो इंटरेस्ट आता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन दैट बट द बैंक पेज सम इंटरेस्ट, उस पर अप टू रुपीज 10,000 फॉर दैट ईयर. ये सारी एनुअली फिगर्स हैं, ठीक है. 3 लाख पर एनम, 10,000 पर एनम. For that particular year, 10,000 is exempt, can be claimed as a tax reduction. 10,000 all from interest on savings account. This is available for all the individuals and HUFs. Section 80 TTB. This section allows senior citizens of 60 years and above to claim up to rupees 50,000 as a tax reduction from their gross total income. This is only for senior citizens above 60 years age. ये फ्लैट एक तरह से उनको डिडक्शन मिल रही है उनकी टोटल इनकम में से 50,000 रुपीज की, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 80U. डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज 75,000 कैन बी क्लेम फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी एंड अप टू रुपीज 1,25,000 फॉर पीपल विद सिवियर डिसेबिलिटी. तो अब क्या है, हमने पुराना ये जो प्रीवियस पढ़ा ना डिसेबिलिटी का सेक्शन 80DD में, ये तो इंडिविजुअल्स विद अ डिपेंडेंट के केस के लिए हो गया कि उनका कोई डिपेंडेंट, उनके पेरेंट्स हैं डिपेंडेंट, या उनकी डिपेंडेंट चिल्ड्रन है या स्पाउस हैं, उनके लिए वो क्लेम कर सकते हैं अपने ITR में से. सेक्शन 80U इज फॉर पीपल हु आर देमसेल्व्स हैव सर्टेन डिसेबिलिटी, ठीक है. तो अब ये सेक्शन में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया है व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, व्हाट इज द सिवियरिटी, कितनी परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग 75,000 पर एनम या फिर 1,25,000 पर एनम की इनकम टैक्स में से उनको डिडक्शन मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर योर सेक्शन 80 डिडक्शंस. आई टेक अप योर डाउट्स नाउ. टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के डिफरेंसेस क्लियरली शो नहीं हुआ. Okay, let me see if आगे भी टैक्स रिडक्शन एंड एग्जाम्पशन के डिफरेंसेस के भी दोनों में द स्लाइड्स वर नॉट क्लियर और व्हाट. आई विल शेयर इट अगेन एंड आप I'll have to scroll through all of your messages and then I will. Okay, I'll take up all the. पहले मैं दोबारा टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स जो टेबल्स, आई थिंक आप टेबल्स के लिए बोल रहे हैं, वो क्लियर नहीं है. मैं तो दोबारा शो कर देती हूँ मैं. सो इफ इट वाज नॉट क्लियर अर्लियर तो आप देख सकते हो. अवॉइडेंस और इवेजन का बेसिक डिफरेंस जो है ये है कि compliance with provisions of the law, it is avoided under evasion, under tax avoidance and evasion के केस में it is avoided through illegal means. It is undertaken by taking advantage of the loopholes in the law. Evasion is undertaken by employing unfair means.
tax avoidance is not performed through malified intention but by complying with the provisions of the law, and tax evasion is performed through unlawful means of paying taxes and defaulters may get punishment. Okay, ये है tax avoidance. I hope आप clear है ये. I don't know how I can make it better for you. I hope अब better हो. ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेती हूँ मैं. अगर बेटर नहीं है तो प्लीज आप दोबारा ड्रॉप कर दो उसमें अपने Q&A बॉक्स में. एंड दूसरा डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस का भी somebody has asked. So these are the deductions and exemptions वाली slide. If it is not clear once again, please let me know. Deductions के केस में हमने बोला investment in certain instruments is done, तो आपकी total tax liability कम हो जाती है. Exemption के केस में some part of your income is exempt from the tax, तो आपकी total tax liability में उसको include ही नहीं किया जाता है. Deductions mainly section 80 में मिलता है. Exemptions के sections usually 10, 11, 12, 13 and 24 हैं. डिडक्शंस के लिए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, तभी उन्हें फुलफिल करोगे इन्वेस्टमेंट्स पे तभी डिडक्शन मिलेगा. एग्जेम्पशन के केस में दैट पर्टिकुलर एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ टैक्स पेयर. सम एग्जांपल्स आर देयर जो हमने वैसे अब डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस सारे डिस्कस कर लिए हैं, सो यू कैन यूज ऑल एनी ऑफ देम एज एग्जांपल्स. ये आपके डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस. ठीक है. If it is still not visible, please let me know again. जिसको नहीं मिला visible नहीं आ रहा था तो मैं दोबारा शो कर दूंगी. ठीक है. शुभ, I think I hope it is clear now. Tax avoidance to ही मैंने briefly दोबारा बता दिया है. देखो mainly tax avoidance is your non-payment of or reduction in your tax liability by a legal route, by using the provisions in the Income Tax Act, by making investments in certain investment instruments, by claiming deductions and exemptions in the income tax laws. Tax avoidance is a legal route. It is through different activities. It is claiming different deductions and exemptions. Avoid कर रहे हैं liability को. Okay. Then the next doubt is 80D से 80E. That is section 80D to section 80E. Okay, wait. This particular slide, I think section 80D, 80E है. लो आप देख लो. So section 80D क्या है? Health insurance premium. If it is still not clear, मैं आपसे discuss कर रही हूँ. If you want to make a note, I'm repeating for you again. Section 80D है deduction for health insurance premium and medical expenses for senior citizens. Annually आप अपनी जो health insurance policy ले रहे हैं उसका जो premium है उसके ऊपर benefit मिल रहा है, या फिर जो आपके medical expenses होंगे. तो a person below 60 years of age can claim up to rupees 25,000 and senior citizens claim up to rupees 50,000. This is available for both individuals and HUFs. 80DD के केस में है disability. Disability 40 to 80% है तो 75,000. Severe disability यानी 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000. This is available for individuals, HUFs who have a handicapped dependent. ठीक है. The next is 80DD. यहाँ पे है डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट किसी पर्सन का चल रहा है एक स्पेसिफिक इलनेस का, वो इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड होगी, तो उसके लिए 40,000 मिल सकता है फॉर अ पर्सन अंडर 60 ईयर एंड मैक्सिमम मिल सकता है 1 लाख फॉर अ पर्सन फॉर अ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन. ठीक है. एंड द लास्ट सेक्शन 80E. 80E मिल रहा है एजुकेशन लोन के लिए. देखो आप इसको ऐसे रिलेट करो, जो सिंगल ई है देखो एजुकेशन लोन उन्होंने बोला है, डबल डी में डिसेबिलिटी की बात हो रही है. थोड़ा अगर आपको लर्न करने में ऐसा इजी हो जाएगा. ट्राई टू क्रिएट सर्टेन एक्रोनिम्स एंड शॉर्टकट्स फॉर योरसेल्फ टू लर्न दीस थिंग्स. आई नो बहुत सारे हैं, एक साथ होंगे भी नहीं, थोड़े थोड़े आप पढ़ के करते जाओगे तो होते जाएंगे. ई में है एजुकेशन लोन. एजुकेशन लोन के जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पे नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है. 8 साल के लिए मिलती है और कब तक मिलती रहेगी? आपका वंस लोन रीपेमेंट हैज स्टार्टेड, और या फिर आपका इंटरेस्ट जो आपने कंप्लीटली पे कर दिया है वहां से स्टार्ट करके टोटल 8 इयर्स तक आपके एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है. तो 80D to 80E आपका ये है.
what else? If a person have insurance premium, then only a person can claim a deduction. Of course, इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्होंने खरीदा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो तो सेक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो रही है, क्योंकि आपका सेक्शन जो 80C है उसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैंने आपको बताई. अगर आपने LIC कॉर्पोरेशन की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उस केस में वो क्लेम 1,50,000 की कैप लग जाएगी. यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन, यू हैव रिटन सेक्शन 80 DDB. 80 DDB जो मैंने आपको अभी बताया वो तो कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है वहां पर. If a person have insurance premium, then only can claim a deduction for what is your question, Bharat? If a person have insurance premium, then only a person can claim for deduction under section 80 DDB. Okay, अच्छा आप 80 DDB में तो मेडिकल ट्रीटमेंट की है. देखो ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने यही बताया है. डिटेल में इन सारी डिडक्शंस में बहुत सारा आप अपने इनकम टैक्स लॉज में या फिर इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ोगे तब उसमें आएगा. यहाँ पे एक्सपेंस की बात हो रही है, यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने नहीं बोला है, या प्रीमियम के लिए नहीं बोला है. प्रीमियम में और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने यहीं पे सेक्शन 80D में बोला है. सेक्शन 80DD इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ डिपेंडेंट सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक इलनेस. ठीक है, उसका जो खर्चा हो रहा है तो मैक्सिमम 40,000 फॉर अ पर्सन अबव 60 years, and a person who is a senior citizen, he gets 80,000. Sorry, 1 lakh. Okay, I hope that is clear now, Bharat. 80 RRB. Section 80 RRB was RRB is income tax up to rupees 3, income of up to rupees 3 lakh received from royalties is eligible for tax deduction. मैंने आपको बताया ना, रॉयल्टी एक पर्सन को बहुत सारी चीजों पर मिल सकती है. उनके कोई इंटेलेक्चुअल, इट इज रॉयल्टी किससे मिलती है? एक बार एक कोई चीज क्रिएट हो गई है, समथिंग क्रिएटिव हैज बीन, कोई जैसे मान लो T सीरीज के सॉन्ग्स हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सिंगर के गाने हैं, या फिर एक आर्टिस्ट की क्रिएशन है, या फिर एक इन्वेंशन का पैटेंट है. तो इन सब चीजों पे क्या मिलती है फिर ओवर द इयर्स? रॉयल्टी मिलती है. वो रॉयल्टीज की जो इनकम है अप टू रुपीज 3 लाख की डिडक्शन मिल सकती, इज अलाउड इन फॉर इनकम टैक्स. ठीक है, दैट इज 80 RRB. ओके, कैन यू गेट अ क्वेश्चन सेम लाइक एज अ इनकम टैक्स सब्जेक्ट इन पर्सनल फाइनेंस? देखो पर्सनल फाइनेंस में आपका पर्सनल टैक्स प्लानिंग ये टॉप यूनिट है आपका. तो इसके अंडर मैंने आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया. आपके इनकम टैक्स लॉ में और डिटेल में होगा ये सब चीज़ें. if you've studied all of those things, I have discussed all of this briefly with you, so you need to know it only for that matter. Section 80 DD में मैम हैंडीकैप डिपेंडेंट फैमिली को भी मेंबर हो सकता है, मदर फादर एंड वाइफ. 80 DD में देखो क्या है. they are saying individuals and HUS with a handicapped dependent. तो इनकम टैक्स एक्ट ने बताया डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स होंगे या फिर स्पाउस होगा या चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, इसके अलावा भी कोई है तो वो अलाउड है या नहीं वो एक्ट में लिखा होगा. उनके लिए एक पर्सन क्लेम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज अ टैक्स पेयर, वो अपने ITR फाइल कर रहे हैं, वो अपने ITR में ही ये 75,000, मान लो somebody has a 60% some neurological disability, their child has it, okay, a 60% neurological disability. तो वो अपने चाइल्ड के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 75,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80 DD डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स में से. ठीक है, बच्चे का तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हो रहा ना, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी मदर हैं, उनके ट्रीटमेंट में वो खर्चा हो रहा है जो, उसके लिए उनको 75,000 तक की डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है. मेडिकल बेनिफिट है ये. ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस पार्ट में नहीं है कोई, दिस इज ओनली थ्योरी. Some of you have been asking me, okay, this is all for the questions, and somebody was asking about the last class as well, so now I don't have time to discuss the last class topic with you. मैं next time कर लूँगी आपसे. ठीक है, and other than that I have been repeatedly telling you PPTs आपकी यहीं पे रहती हैं ये,
recording आप refer कर लो करना है तो there is no other platform elsewhere for anything else. So that's all for this unit from my side for today. आपकी जो लास्ट क्लास का किसी ने पूछा है मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूंगी विदाउट नॉट इन द शो. ओके, आई होप आज की क्लास में योर डाउट्स हैव बीन क्लियर related to exemptions, deductions, tax avoidance and tax evasion. If there are any more doubts, you can get back to me in the next class. All right, so that's all for today. Thank you.